Hello dear students, my name is Ankita and I am teaching as an assistant professor in Department of Computer Science and Engineering at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurugram. I welcome all of you to the lecture 17th of my online lecture series of object-oriented programming using C++, and in this video we will study the concepts of string, function, namespaces and exceptions, operators, flow control, recursion, array pointer, structure and classes. So these are the topics which we have already studied in C programming as well. So we will be looking into the various ways to use all these concepts in C++ as well. So in previous video we studied about the data types, user defined data types, type def, enumerated data types, and we also studied the structure of C++ program. So let us begin with the string. So we all know string is a collection of characters. If we talk about C++, string is a class. So C style structure string originated within the C language, and that also continues to be supported by the C++. And string is basically a one-dimensional array of characters which is terminated by null. So a null terminated string contains the characters that comprise the string followed by a null. So these are the functions which we have seen in C programming as well: string copy, string concatenate, string compare, string length, string character. Okay, so all these are the functions which work to concatenate, to copy, to compare two strings, or to identify the length of a string. All these functions can be used in C++ as well, and besides these there are many other functions also which are already defined in C++ class, which is a string class. So string class stores the characters as a sequence of byte with the functionality of allowing access to single byte character. So the standard C++ library provides a string class that supports all the functions mentioned above as well as the other functions also. So such functions are like input functions. We will be learning these types further. Like input functions are getLine, pushback, pop back. So getLine is used to store a stream of characters as entered by the user in the object memory. So whatever you return with the getLine function, it is stored inside the stream of characters. Pushback and pop back functions are used to input a character at the end of the string, and pop means to delete the last character of the string. So second type of functions are capacity functions. First was input function, second was capacity. In capacity function we have capacity function resize, length, shrink to fit. So capacity function is used to return the capacity allocated to the string, which can be equal to or more than the size of the string. So additional space is allocated so that when the new character are added to the string, the operations can be done efficiently. So capacity हमारा जो है return करता है total capacity of the string, जितने character हम उसमें enter कर सकते हैं. Resize function होता है that change the size of the string. जैसे हम character array ले starting में हमने 10 लिया, हम later on से 15 कर दे तो resize किया है हमने. Length find out करता है length of the string की. Shrink to fit function decreases the capacity of the string and makes it equal to its size. So this operation is useful to save additional memory if we are sure that no further addition of the characters have to be made. Third type of category are the iterator functions. In this function we have pointer related functions. Like imagine that we have a file, and in that file we have text written. So whenever we are opening that file, so where the pointer should be placed, at the starting position, at the end position, or at somewhere in the middle of the text. So ये जो इटरेटर फंक्शंस होते हैं ये हमारे एक तरह से पॉइंटर्स, हमारा जो कर्सर है वो कहाँ से वो स्टार्ट करना चाहिए लिखना. जैसे बिगिन है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द इटरेटर टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग. एंड जो होगा एंड में रिटर्न करता है स्ट्रिंग के. रीबिगिन, आर बिगिन होता है ये जो रिवर्स इटरेटर पॉइंटिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. And re-end, this function returns a reverse iterator pointing at the beginning of the string. So r जिनके आगे अपेंड किया हुआ है वो है रिवर्स इटरेटर पॉइंट आउट करने के लिए. ये हमारा स्ट्रिंग्स था. फिर फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हम सभी जानते हैं, दीज आर दिस रिटन स्टेटमेंट और दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट विच व्हेन आर पुट टुगेदर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क. कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं. दीज स्टेटमेंट्स कैन बी परफॉर्मिंग सम रिपीटेड टास्क और दीज स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग सम स्पेशल टास्क लाइक प्रिंटिंग एटसेट्रा. Features of functions include that they can help us to reduce code redundancy. Functionality is performed at multiple places in the software. Then rather than writing the same code again and again, we can create the functions and call that function anywhere we require. Function makes कोड मॉड्यूलर ऑल्सो. एक बहुत बड़ी फाइल आप कंसीडर कर सकते हो जिसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड हैं. आप उन फंक्शंस के आप उस पूरे कोड को फंक्शंस में डिवाइड कर दो.
तो इससे आपका कोड देखने में भी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा और समझने में भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। फंक्शंस प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो, आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत होती है, अलग अलग प्लेसेस पर प्रोग्राम के आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोड रीयूजेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मेजर हमारे एडवांटेजेस हैं फंक्शंस के, कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड इन दी C++ header files already, and user defined functions are those functions which are created by the programmer, so he or she can use those functions many times. It reduces the complexity of a big program and optimizes the code as well. And इसकी जो syntax होता है, first of all return type will be there, function always returns some value, so return type will be there, then the function name, and there next will be the argument list, parameter 1, parameter 2. So this is the argument list on which this function will be working. So this is function body. Inside this function body it can have its own local variable also. This section was concerned with the function definition, and when we need to call that function, so we can call that function call by value or pass by value, or we can call that function by address or by reference as well. सो यूजुअली फंक्शंस आर कॉल्ड बाय देयर नेम। अगर हमने कोई सम फंक्शन बनाया तो हम सम फंक्शन को उसके नेम से ही कॉल करेंगे, और इफ़ द फंक्शन इज़ विदाउट आर्ग्यूमेंट इट कैन डायरेक्टली बी यूजिंग विद इट्स नेम, बट अगर फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट है तो वो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस से आप उसे कॉल करा सकते हो। सो कॉल बाय वैल्यू का जो एक एग्जाम्पल होगा वो हम एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हम दो वैल्यू को हमें स्वैप कराना है। सो दिस इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन विद द नेम स्वैप। दिस इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन। Okay, so this is the function declaration and this is the main function. This is function calling. I am writing the various section of a function in the comments. So this is calling and this is function definition, wherein you are actually writing the logic or code to swap two numbers. So we have taken third variable here named k. So we are swapping the value of a and b with the help of that. So in this particular statement we are calling that swap function call by value only. So x and y are passed directly, so that is known as the call by value. And call by address or pass by address, if we say, so instead of passing values addresses are passed. Functions operate on the addresses rather than their values. And the formal arguments, हाँ yes, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका ये कॉलिंग में जो भी पैरामीटर्स जो भी आपके रहते हैं, दीज आर दी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जो आप मेन फंक्शन में डिफाइन करके उनकी हेल्प से कॉल कराते हो, और जो आप यहाँ पर डेफिनेशन में जो आप लेते हो, दीज आर दी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर पॉइंटर्स टू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, हैंस चेंजेस मेड इन द आर्ग्यूमेंट आर परमानेंट। सो इसे भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। स्वैप का ही एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर ये फंक्शन डिक्लेरेशन है अगेन, बट रिमेंबर दैट इन डिक्लेरेशन वी हैव टू टेक दी वेरिएबल्स एज दी पॉइंटर्स, क्योंकि हम कॉल बाय एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें वहाँ पर पॉइंटर्स मेंशन करेंगे, क्योंकि जब भी आप एड्रेस से किसी वैल्यू को पास करोगे तो आपको पॉइंटर्स की हेल्प से करना होता है वो। तो यहाँ पर आप पॉइंटर्स एंटर कराओगे और यहाँ पर रेफरेंस पैरामीटर, रेफरेंस ऑपरेटर आप यहाँ पे पास कराओगे कॉलिंग में। दिस इज़ फंक्शन कॉलिंग एंड दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन। और इन फंक्शन डेफिनेशन ऑब्वियसली आप पॉइंटर्स आपने वेरिएबल लिए हैं तो आप उन्हें पॉइंटर्स की हेल्प से ही स्वैपिंग भी परफॉर्म कराओगे। थर्ड टाइप होता है कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स दे रेफर टू द सेम लोकेशन, सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द actual parameters of the caller. So in this we pass the address of the variable as an argument. In this case the formal parameter can be taken as a reference or the pointer. So in both the case they will change the value of the original variable. So इस केस में अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर आपने पॉइंटर्स एज अ पॉइंटर आपने यहाँ पर पास किया। इंटीजर टाइप का पॉइंटर दो आपने ले लिए जो कि पॉइंट कर रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को। पी और क्यू आपके दो पॉइंटर्स हैं, वो किसे पॉइंट कर रहे हैं, एक्स और वाई की लोकेशन को। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने जो अपने पैरामीटर्स पास किए वो एज अ रेफरेंस, उनका डायरेक्ट हमने रेफरेंस ही पास कर दिया है। तो रेफरेंस पैरामीटर जो हमारा एम्परसेंट होता है, ये एक रेफरेंस ऑपरेटर होता है, एम्परसेंट जिसे बोलते हैं। जब आप कॉल करेंगे उसे तो आप उस कॉलिंग में नॉर्मल उन वेरिएबल्स को पास कराओगे। दिस इज फंक्शन कॉलिंग।
और जब आप फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस मेंशन करना है। तो इसका मतलब है आप सिर्फ रेफरेंस पास करा रहे हैं उसका। तो जब भी आप लोकल फंक्शन में यानी कि इसमें कोई भी चेंज आप पी और क्यू की वैल्यू को करते हो, इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी एक्स और वाई में। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज इनलाइन फंक्शंस। सो हम जो भी फंक्शंस हम लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी according to the algorithm which we want to implement. Okay, so small functions usually like आपने एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, या आपने सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, जिनका डायरेक्ट लॉजिक होता है, ऐसे फंक्शंस सिर्फ एक लाइन में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। एंड दोज फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इनलाइन फंक्शंस व्हेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन एज only in the one line. Okay, and the compiler copies the code of the function in the calling function directly. Then the function body is inserted in the place of the function call during compilation. And passing of control between caller and callee function is avoided in this case. So इस तरह के functions जो होते हैं आपके डायरेक्ट जहाँ पर आपको रिटर्न करना था वहाँ पे इनलाइन, तो आप ये इनलाइन कीवर्ड ऐड करके कंपाइलर को ये बता रहे हो कि ये जो है मेरा एक इनलाइन फंक्शन है जिसका कि जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन टाइम है वो हमारे दूसरे फंक्शन से जो इनलाइन नहीं है कम होता है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम नॉर्मल फंक्शन से कम होगा। कंपाइलर इसे समझ जाएगा, येस इट इज़ अ इनलाइन फंक्शन, आई हैव टू जस्ट रिप्लेस द कंप्लीट कॉलिंग विद द डेफिनेशन, क्योंकि एक लाइन में एग्जीक्यूट हुए हैं और इसका एग्जीक्यूशन टाइम कंपैरेटिवली कम होता है। तो आप जब इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करोगे तो कंपाइलर को इनलाइन और नॉर्मल फंक्शन समझने का जो कंसेप्ट होता है वो अलग अलग होता है। इनलाइन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर रिटर्न यूजुअली इन दी वन लाइन। ऑपरेटर्स जो होते हैं सी प्लस प्लस में और सी में तो वो कॉमन होते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ दीज ऑपरेटर्स एंड हम अभी तक काफ़ी प्रोग्राम्स में यूज़ कर चुके हैं इन सभी ऑपरेटर्स को। देयर आर इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मेमोरी मैनेजमेंट, न्यू और डिलीट ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंस ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के अलावा ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। सी प्लस प्लस में ये दोनों एक्सेप्शनल हैं क्योंकि सी इन और सी आउट के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल flow control in the C++ that we can implement with the if, while, do while statements. And here I have written the syntax of using the different flow control in C++. So हम सभी हमें मालूम है कि हम for किस केस में यूज़ करते हैं, while हम किस में यूज़ करते हैं, do while किस में यूज़ करते हैं और if में किस में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इन्हें ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो सिचुएशन में, दो कैटेगरीज में हम इसे कैटेगराइज करेंगे, ब्रांचिंग एंड सीक्वेंसिंग। सो ब्रांचिंग और सीक्वेंसिंग, ब्रांचिंग आपका आता है जहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग केसेस में डिवाइड कर दिया, तो आपका स्विच केस जो होता है वो आप ब्रांच उसमें लगा सकते हो। सीक्वेंसिंग में आपका आता है कि जब आपको किसी लिस्ट को या किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को आपको रिट्रीव कराना है तो उस केस में आप लूप्स की हेल्प लेते हो। ओके, तो इफ़ और स्विच जो है हमारा दोनों ब्रांचिंग के अंदर आता है। जैसे इफ़ में हम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को, और जो लूप्स होते हैं वो हमारे यूजुअली किसी लिस्ट को या किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को रिट्रीव या ट्रैवर्स करने के काम आते हैं, वो हमारे लूप्स होते हैं। इसके अलावा एक फॉर ईच लूप भी होता है। इन 2011 स्टैंडर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉर लूप वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच इज़ समटाइम्स नोन एज फॉर ईच। Because of its similarity to the for each found in some other languages, in this form, the variable declared in declaration takes the value of first number of the list and executes the expression block. We complete the declared variable takes the second value. When completed, the declared variable takes the second value of the list and execute expressions again. This process is repeated for each value in the list. So ये हमारा सिंटेक्स होता है फॉर कीवर्ड, डिक्लेरेशन, लिस्ट एंड देन एक्सप्रेशन। ये स्विच है जहाँ पर हमने मल्टीपल केसेस में डिवाइड कर दिया अपनी प्रॉब्लम को। इसके अलावा कुछ कंट्रोल फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होती हैं लाइक ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होती है दैट पासिस कंट्रोल टू द एंड ऑफ द क्लोज्ड ब्रेस ऑफ एनी ऑफ द लूपिंग कंट्रोल एंड दिस कॉजेज द लूप टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। जैसे आपने फोर लूप चलाया 0 से लेकर के 20 तक, देन यू आर जस्ट चेकिंग इनसाइड दैट फोर लूप दैट इफ दैट आई इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर नहीं है तो क्या होगा, वो लूप के अंदर कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर एंटर करेगा,
तो यहाँ पर क्या करेगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स, कंटिन्यू यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको लूप के बाहर आना है। लूप के बाहर मीन्स नेक्स्ट इटरेशन से आपको स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पर ब्रेक होता तो ये बिल्कुल लूप के बाहर आकर के यहाँ पर एग्जीक्यूट करता। कंटिन्यू का मतलब है इस पर्टिकुलर आई की वैल्यू को आप स्किप कर दो और कंटिन्यू करो नेक्स्ट इटरेशन से। सो सिमिलरली ब्रेक जो होती है, अगर ब्रेक एनकाउंटर होता है किसी लूप में, यहाँ पर आपने किया, अगर हमें सी इन रीड अगर हमारा होता है, एंड ऑफ फाइल उसे इनकाउंटर हो जाता है, और सी इन डॉट फेल हो जाता है। सो एंड ऑफ फाइल एंड फेल आर द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ योर आईओ स्ट्रीम क्लास। तो सी इन को अगर एंड ऑफ फाइल मिलता है या सी इन अगर फेल हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर लूप में एंटर होगा, ब्रेक करेगा एंड देन प्रोसेस। तो ब्रेक के केस में जो हमारा कंट्रोल है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है लूप के। कंटिन्यू अगर हमारे पास होता तो वो हमारा नेक्स्ट इटरेशन पे जाता है। whereas global जो whereas go to label passes control to the label provided, the break example above could have been written as follows, like while है, जब तक ये true है it will read a line from the object input, and if the failure of or the end of file is encountered like same condition, तो go to exit label। exit label हमारा इस पर्टिकुलर लूप के बाहर है, तो यहाँ पर हमारा जब ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो वो इसी से सिमिलर जो भी लेबल होगा उस पर जंप हो जाएगा कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज द रिकर्शन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So using the recursive algorithm, certain problems can be solved, and problems like Tower of Hanoi, in order, pre-order, post-order, tree traversals, DFS of graphs, ये सब आप प्रॉब्लम रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। कभी भी आप रिकर्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ बेस केस हर सिचुएशन का। लाइक अगर आप बार बार एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम बेस केस जहाँ पर एनकाउंटर होते ही आपके जो रिकर्शन है वो एंड हो जाना चाहिए। सो बेस केस हमारा एक तरह का सॉल्यूशन होता है विच इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड द रिकर्शन फंक्शन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्मॉलर प्रोग्राम। सो ये मैंने फैक्टोरियल का यहाँ पे प्रोग्राम ऐड किया है। इस प्रोग्राम को आप समझ सकते हो इस फंक्शन की हेल्प से। जैसे जैसे आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर हम फंक्शन में एंटर किया, यहाँ पर ये फंक्शन में ये बेस कंडीशन है, और यहाँ पर एल्स पार्ट में अगर ये बेस कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न 1 करके बाहर, अगर ये फॉल्स होती है तो जब तक ये फॉल्स रहती है तब तक एल्स पार्ट में मतलब फैक्टोरियल कैलकुलेट करता रहेगा। अब हमने यहाँ पर जब एफ नम कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो एफ नंबर मेरा मान लीजिए 5 है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 n5 कंसीडर करके चल रहे हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल टू 5, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, सॉरी दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो इट विल रिटर्न दी फैक्टोरियल, जिसमें वो फिर अपने आप को दोबारा, तो अब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो 5 - 1 क्या 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फोर्थ के लिए, देन थर्ड के लिए, देन सेकंड के लिए फिर कॉल हो रहा है, देन फर्स्ट के लिए, देन जब यहाँ पर 0 हो गई तो हमारी बेस कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। दैट इज n इज लेस देन इक्वल टू 1। येस, इट इज़ 0, n की वैल्यू 0 हो गई तो ये ट्रू हो गई, कंडीशन रिटर्न 1 करके बाहर आ जाएगा। By this way you can use the recursion. Recursion can be direct or indirect. Then function call itself, it is called the direct recursion. इस तरह का एग्जाम्पल अभी हमने देखा है ऊपर फैक्टोरियल के केस में। एंड इनडायरेक्ट रिकर्शन होता है व्हेन फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन कॉल्स द कॉलिंग फंक्शन इटसेल्फ। इनडायरेक्ट होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कराता है और वो दूसरा फंक्शन वापस उसी फंक्शन को कॉल कराता है, उस तरह के रिलेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन। जैसे कि फंक्शन ए कॉल्स फंक्शन बी एंड देन फंक्शन बी कॉल्स दी फंक्शन ए इन रिवर्स। एरेज ऑन द अदर हैंड आर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। हम सभी एरेज को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हमें लिस्ट के साथ कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ में काम करना होता है, स्पेशली जब वो डेटा सेम टाइप का हो, तब हम एरेज यूज़ करते हैं। जब हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तब तो करेक्टर एरे है ही हमारे पास। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स एंड एरे इज़ अ डिराइव्ड डेटा टाइप। सो ये रिप्रेजेंटेशन है एक एरे की। यहाँ पर आपका 9 लोकेशंस है विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 8। ओके, फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 8 है। एरे डिक्लेरेशन जो है हम इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज सिंपली एरे डिक्लेरेशन। हम स्पेसिफिक साइज ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 10 की जगह नंबर कोई वेरिएबल ले लें, उस वेरिएबल को हमें पहले डिफाइन करना होगा। हम एरे डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं कर्ली ब्रेसिस के अंदर, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। सो हेयर कंपाइलर क्रिएट्स द एरे ऑफ साइज 4। ठीक है, ऊपर वाला जो ये है इस तरह से भी आप यहाँ पर इस इंडेक्स ब्रैकेट में आप यहाँ पर साइज भी मेंशन कर सकते हैं। देन यू कैन इनिशियलाइज द डेटा, यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यूज।
ओके, एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग साइज एंड इनिशियलाइजिंग एलिमेंट्स, दोनों चीज़ें साथ ही सेम यहाँ पर हो रहा है। ये जो है हमारा सेम यहीं पर इम्प्लीमेंट हुआ है। 4 एलिमेंट्स है, ये जो है यहाँ पर 4 एलिमेंट्स क्रिएट होगा, लेकिन एरे का साइज़ क्या है यहाँ पर 6 है। सो जो दोनों एलिमेंट बाकी के बचेंगे उनकी वैल्यू 0 0 होगी, तो कंपाइलर इसे ऐसे पढ़ेगा। ओके, 4 वैल्यू तो हमने इनिशियलाइज कर दी, लेकिन 2 वैल्यूज रह गई तो उनको 0 इनिशियलाइज करेगा। तो पॉइंटर्स हमारे अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग में। जब हम डायनामिकली कुछ भी अलोकेशन डी अलोकेशन करते हैं तो पॉइंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉइंटर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस, दीज आर द वेरिएबल्स विच पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एंड जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के, हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं, तो पॉइंटर्स भी हम इंटीजर टाइप के भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट टाइप के भी पॉइंटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सो दे हैव द डेटा टाइप जस्ट लाइक द वेरिएबल्स। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का आपका पॉइंटर होगा। दे एनेबल प्रोग्राम्स टू यूज द कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस। हमने एड्रेस वाले में देखा था हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे थे, और जहाँ पर आपको डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ में काम करना होता है वहाँ पर आप पॉइंटर्स को यूज़ करोगे। कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन हैज़ एन एड्रेस एंड होल्ड्स द कंटेंट। सो द एड्रेस इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है बेसिकली। टिपिकली जो एड्रेस लोकेशन होती है वो 8 बिट यानी कि 1 बाइट को होल्ड करती है, एंड इट इज़ एंटायरली अप टू द प्रोग्रामर टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द डेटा सच एज इंटीजर, रियल नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। To ease the burden of programming using the numerical address and programmer interpreted data, early programming languages like C, they use the concept of the variables. So variable एक तरह की named locations होती हैं that can be used to store a value of a particular type. Instead of numerical addresses, names are attached to the certain addresses. So also types like integer, double char, they are associated with the contents for ease of interpretation of data. पॉइंटर्स को समझने के लिए लेट अस हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। ये हमारी लोकेशंस का एड्रेस है, ये हमारी लोकेशंस है मेमोरी की, और ये हमारे वेरिएबल्स आप समझ सकते हैं सम, एज, एवरेज एंड PTR सम। सम ये इंटीजर टाइप का है, एज हमारा शॉर्ट इंट का है, एवरेज हमारा डबल टाइप का है। पॉइंटर जो हमने लिया है वो सम के लिए लिया है जो कि इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, तो ये 4 बाइट का है। इस तरह से हमारा लोकेशन होता है। तो जो पॉइंटर होगा इट विल बी ऑफ 4 बाइट। तो जो हमारा डेटा था इसके अंदर वो एज इट इज़ PTR सम क्या करेगा, हमारा एड्रेस को पॉइंट करता है उसके। तो जो इसका एड्रेस होगा जैसे 90th, जो इसका बेस एड्रेस है 90th, तो इसलिए यहाँ पर सो फर्स्ट इसकी वैल्यू जो इसके फर्स्ट ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर 90 और बाकी की वैल्यूज़ यहाँ पर इसे 0 0, और यू कैन से ये 0 0 यहाँ पर मेंशन क्यों है, तीनों यहाँ पर 0 0 आ जाएंगी। सो PTR एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे के एड्रेस को रखता है बट नॉट दी डेटा, जो कि पॉइंट कर रहा है दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, तो उसी का कंटेंट एड्रेस एज अ कंटेंट वो रखेगा। पॉइंटर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप देन पॉइंटर नेम, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर क्रिएट किया हुआ है। जब डिक्लेयर करेंगे हम पॉइंटर को तो हम किसी भी इन तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यूजुअली हमारा ये तरीका फॉलो होता है, डेटा टाइप देन स्पेस देन पॉइंटर देन स्पेस देन PTR। ये एग्जाम्पल्स हैं। P1 P2 पॉइंटर नेम कैन बी एनीथिंग, जैसे आप वेरिएबल साइज चूज़ करते हैं वैसे पॉइंटर नेम भी कुछ भी हो सकते हैं। जब हम इनिशियलाइज करेंगे पॉइंटर्स को तो हम इनिशियलाइजेशन इस तरह से कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ये होता है कि जब आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को जब उसे असाइन कराने जा रहे हो तो दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। सो जो ये हम करते हैं यूज़ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से। ये जो एम्परसेंट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है विच ऑपरेट्स ऑन द वेरिएबल एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जैसे यहाँ पर इंटीजर हमने किया हुआ है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, P नंबर मेरा ये एक इंटीजर हमने पॉइंटर हमने यहाँ पर बनाया है, एंड दिस इज़ द एक्चुअली नंबर, कोई भी नंबर है 88 उसकी वैल्यू है। यहाँ इसका कुछ एड्रेस है, और जब हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया ऑब्वियसली वो भी कहीं मेमोरी में रिसाइड करेगा, जैसे ऊपर डायग्राम में हमने देखा था। इसका एड्रेस ये है, बट जो इसका एक्चुअली डेटा जो इसके अंदर जो डेटा होगा इस ब्लॉक में वो हमारा होगा कंटेंट, मीन्स द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। So the address of operator is the ampersand, which is different from the dereference यानी star operator, and star operator की जब हम बात करेंगे which stores the pointer, और अगर हम star operator की जब हम बात करेंगे तो actually जो pointer होता है वो star से ही represent करते हैं हम। The interesting property of a pointer is that they can be used to access the variable they point to directly. This is done by preceding the pointer name with the dereference operator. मेन जो ऑपरेटर होता है, अब स्टार PTR लिखेंगे तो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एम्परसेंट लिखेंगे तो वो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर।
इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने देखा स्ट्रक्चर, क्लासेस एंड यूनियन, दीज आर ऑल द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप and they all are related, all three are related with each other in some or the other context, like तीनों ही अपना एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं, तीनों में ही कीवर्ड यूज़ करके देन आप कोई भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। इनमें जो डिफरेंस होता है वो हमारा बेसिकली मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस होता है। ओके, सो स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, ऑल दीज आर दी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाज, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का होता है, सबसे पहले वी हैव टू यूज द स्ट्रक्ट कीवर्ड, देन स्ट्रक्चर नेम, देन डेटा मेंबर्स इनसाइड इट। ओके, सो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। C++ में पॉसिबल है फंक्शंस स्ट्रक्चर में। सो इसका एग्जांपल यहाँ पे है, स्ट्रक्चर एक बनाया हमने पर्सन नेम का, जिसमें जो डेटा है वो नेम, एज और फ्लोट सैलरी है। जब एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उस टाइम पे कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होती। मेमोरी जब अलोकेट होती है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मीन्स जब हम उसका वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं। सिमिलरली जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब उसके लिए मेमोरी अलोकेट होती है, लेकिन जब हम क्लास बनाते हैं उसके लिए मेमोरी अलोकेट नहीं होती। अगर आप स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स को ऐसे इनिशियलाइज करेंगे तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर आप इसके पॉइंटर, इसके वेरिएबल की हेल्प से ऐसे वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो जो वेरिएबल आपने यहाँ पर अपने डेटा मेंबर एज ए स्ट्रक्चर में लिए हैं, तो आप जब उन्हें वैल्यू असाइन कराएं तो इस तरह से सीक्वेंस लिखें। पहला वाला जो है x को असाइन होगा, देन सेकंड वाला y को। क्लासेस के केस में आप देख चुके हैं, हम एक ब्लूप्रिंट होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर टू स्ट्रक्चर होता है, लेकिन काफ़ी ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर और क्लासेस में डिफरेंस देखेंगे। और क्लासेस में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है कंस्ट्रक्टर का, टू कंस्ट्रक्ट दी ऑब्जेक्ट इन दी मेमोरी, और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिस्ट्रक्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए डिस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ होता है। और स्ट्रक्चर और क्लास दोनों के ही ऑब्जेक्ट और वेरिएबल आप मेन फंक्शन में बनाते हैं। एंड आप एक बर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हो क्लास का, अगर आप समझना चाहो तो, जैसे विंग्स और बीक्स होते हैं, विंग्स एंड बीक्स हैं, सभी के पास होते हैं, बर्ड्स के पास। सो फ्लाइंग जो है एक बिहेवियर हो गया, विंग्स एंड बीक्स आर देयर करेक्टरिस्टिक्स। लाइक एक स्टूडेंट है तो उसका नेम, रोल नंबर, क्लास, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, बट जो स्टूडेंट है वो ऑल इन ऑल एक क्लास का नेम है। और अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं। क्लास को हम इस तरह से बना सकते हैं, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, देन एक्सेस स्पेसिफायर, देन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो इस जब हम डिक्लेरेशन की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो स्ट्रक्चर और क्लासेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। क्लासेस को हम और भी डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ओके, सो द लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स और एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, and references we will study in the last video. That will be the last video of your syllabus. Thank you so much. Take care.